Hello students, in the last video we have finished the chapter that is state of matter. So today we are going to start a new chapter that is thermodynamics. So first of all, what is thermodynamics? In the thermodynamics we will study of the energy conduction or energy transformation, how the energy how the energy is supplied, or how the energy is changed in the form of heat, in the form of work, and how the energy is supplied to the system, supplied to or to any object, and how the energy is supplied from an object to the surrounding, to the reaction. Generally in the chemistry, thermodynamics is related to the heat ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन. जनरली केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब हीट ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर हमको देखना होता है कि एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हुआ है, हीट सप्लाई हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट इंक्रीज हुआ है, एनर्जी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंटरनल एनर्जी एंड मैनी अदर टर्म्स. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट. द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स. द स्टडी of energy ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमको करना है. चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when we do a practical, then we have to select any object or any system on which we are doing the practical, or a certain area of concern. ठीक है. Suppose this is our beaker. Suppose in a beaker we are performing any practical, and there is a matter in it. Suppose any liquid. Okay. So this beaker, this is a beaker. So this beaker is the we can say that is the पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन विच वी आर स्टडी, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. और मैटर ऑफ कंसर्न इसको बोल सकते हैं. मीन इट इज आवर सिस्टम, इट इज आवर सिस्टम. सो नाउ व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन विच वी आर डूइंग अ प्रैक्टिकल, ऑन विच वी आर अप्लाइंग द रूल, और टू विच वी आर स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. चलिए. नेक्स्ट वन इज except the system, all the surrounding, except the system, all the things around this beaker is called surroundings. Surroundings means if I add system and surrounding, I will get universe. Universe generally it is a large concept. ठीक है. तो the part of universe on which we are studying, on which we are applying the rules, on which we are working is called system, and the rest of the part of universe except the system is called our surrounding. Suppose I have another container that is closed, this was open, that is closed. So this closed container is called system, and all the entire environment of the system is called surrounding, and both are known as universe. Both are known as universe. ठीक है. चलिए. जनरली classification of system, classification of system, we can classify the system on the basis of energy and the work, or energy, heat and work. ठीक है. Energy, heat and work.
or we can classify them on the basis of matter. They were the process, sorry. The classification of system can be done on the basis of matter and energy. Energy, work and heat was the process. ठीक है? The process will be classified on the energy, heat and work. चलिए, matter. If I have a system through which I can exchange the heat and I can also exchange the matter, then it is called open system. Then it is called open system. इसको क्या बोलेंगे? Open system. ठीक है? चलिए, if I have a container that is closed, through which I cannot exchange matter but heat को मैं exchange अभी भी कर सकता हूँ, but heat can be exchanged through the system. Then it is called closed system. Closed system. Closed system. And the walls through which the energy is transferred is called boundaries. In the third one, if I have a system through which neither the matter nor heat can be exchanged, so this system is called isolated system. This system is called isolated system. ठीक है बेटा, ये बन जाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम. चलिए, you can take the screenshot of this and then I will explain some more terms to you. चलिए, next one is state of system. Generally, in thermodynamics and in the previous chapter, we have studied about the bulk properties. ठीक है? State of matter में हमने bulk किया, यहाँ भी हम bulk properties कर रहे हैं. So the macroscopic properties, or we can say bulk. मैक्रोस्कोपिक और बल्क प्रॉपर्टीज. ठीक है? Those macroscopic or bulk properties which define the state of system, which define the state, are called the state of system. ठीक है? Which define the state of system are called the state function or state variable. ठीक है? जो state of system की state को define करते हैं are called क्या? State function, or we can say state variables. ठीक है? Generally they are pressure, volume, temperature, as we seen in the last chapter. कि अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है. इफ वी चेंज द वॉल्यूम देन we can change the pressure and temperature of a gas. ठीक है? तो बल्क के लिए था, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए नहीं था. ठीक है? बल्क के लिए. एंड अगर आप कह सकते हैं कि अदर प्रॉपर्टीज, यहां पे लिख लेना, अदर प्रॉपर्टीज विल बी adjusted
ऑटोमेटिकली, ठीक है। मीन्स जैसे कि ये जरूरी यही नहीं है कि यही स्टेट वेरिएबल है। सपोज इफ आई हैव डेंसिटी, अगर डेंसिटी को मैं मेजर करना चाहूँ, मेरे को पता है ना कि प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो ये अंडरस्टूड है ना। तो जनरली ये तीन प्रॉपर्टी होती है हमारी स्टेट को डिफाइन करने के लिए किसी भी सिस्टम की, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। डिपेंड ओनली दीज थ्री स्टेट। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द स्टेट, ऑल द प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना इतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि स्टेट फंक्शन है, या फिर आप इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्टेट वेरिएबल लिखता हूं इसको, स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which are depend only on the particular state of system, not on the path, किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, स्टेट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे हम इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल ई, ठीक है। चलिए, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द टोटल एनर्जीज कंटेन्ड बाय एनी सिस्टम, ठीक है। क्या लिख पाओगे? सम ऑफ ऑल एनर्जीज कंटेन्ड बाय सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी उन सबका सम। सपोज आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, आपका स्टैटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, आपका अदर टाइप का एनर्जी होता है, आपका फ्रिक्शन हो गया, या फिर आपका विस्कोसिटी हुआ, ये सब क्या हुआ? ये सब इन सब का सम को कहलाएगा क्या? डेल्टा ई, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी होता है, ये सब इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, यू। और इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है केवल और केवल स्टेट पे, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कोई हम ऐसे यूज करते हैं, क्या करते हैं इसको? डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सपोज एक सिस्टम है और सिस्टम को मैंने टेम्परेचर दिया, यानी कि हीट एक्सचेंज कराया, तो ये जरूरी नहीं है कि हीट मैंने उसको कैसे एक्सचेंज कराया, क्या मैं उसको डायरेक्ट हीट कर रहा हूँ या मैं उसको काइनेटिक एनर्जी में उसको इंक्रीज कर दूंगा। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर तो वैसे भी इंक्रीज हो रहा है। या फिर मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ सिस्टम को, तो यानी कि दो मेथड हुए, एक बाय हीटिंग एंड एक बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंटेन्ड बाय द कंटेनर और सिस्टम, ठीक है। तो दोनों ही अलग तरीके हुए, लेकिन वो तरीके पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ये हमें पता लग गया है। ये क्या है? डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, यानी कि स्टेट फंक्शन है। क्या है हमारा? स्टेट फंक्शन है, केवल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हुआ। दूसरी बात, इफ आई एक्सचेंज द मैटर, अगर मैं यहां पर एक्सचेंज कर लेता हूं मैटर, ठीक है, मैंने मैटर एक्सचेंज कर लिया। सपोज मैंने इसके अंदर कुछ मैटर डाल दिया, वहां पर रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद अपने आप टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो मैटर, अगर मैं मैटर वहां से निकाल लेता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है, हो सकता है कोलिजन इतना ना हो जितना पहले हो रहा था, ठीक है, कोलिजन इतना ना हो जितना पहले हो रहा था, तो एक्सचेंज मैटर करने से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन में सबसे पहला हमारा है इंटरनल एनर्जी, जो कि हमने डिफाइन किया है। ये जितने भी मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इनको आप जो भी मैंने बोला है उस सबको आप लिख लेंगे साथ में,
ठीक है, वही आपका नोट्स बन जाएगा। आपको अलग से नोट्स बनाने की इसमें चैप्टर में जरूरत नहीं है, जो मैं कराऊंगा आपको केवल वही करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी इंटरनल एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया है, अब इंटरनल एनर्जी को डिस्कस और करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन के तरीके से कैसे बिहेव करेगी। इंटरनल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से इसको इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय वर्क। ठीक है, नेक्स्ट बाय वर्क डन हो, फिर हमारा हुआ बाय हीट, और थर्ड है बाय वर्क एंड हीट। तीन तरीके से इसको अल्टर कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। चलिए सबसे पहले करते हैं इंटरनल एनर्जी, इसको करते हैं सबसे पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय वर्क डन। ठीक है, बाय वर्क डन। अगर इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है बाय वर्क डन। ठीक है, चलिए केवल वर्क करना है, ना तो हमको क्या करना है कि ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, ना उसको हीट देना है, क्या करना है, केवल वर्क डन करना है। ठीक है, वर्क करना है, उसको हीट प्रोवाइड नहीं कराना, केवल वर्क करना है। चलिए मैं एक सिस्टम सपोज कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पर मेरी दो स्टेट होगी, एक तो होगा फर्स्ट स्टेट, सेकंड होगा मेरा, दूसरा होगा मेरा सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में अगर मेरे पास एनर्जी है यू ए इंटरनल एनर्जी, सेकंड स्टेट के पास मेरे यू बी इंटरनल एनर्जी है, और उसके बाद आपका मैंने उसको किया है टेम्परेचर, तो था उसका टी ए था और यहाँ पर टी बी टेम्परेचर था। और मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैं केवल वर्क करूँ। ठीक है, जिसमें मैं केवल वर्क करूँ और टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है, वर्क करूँ और केवल टेम्परेचर बढ़े। यहां पर Q इजकल्स टू 0 रहना है, क्यों मैं उसको दूंगा नहीं, केवल वर्क करना है। तो यहाँ पर बेटा एक क्या होगा, एक पैडल होगा, ये जो सिस्टम है इसके अंदर मैटर होगा हमारा, और ये सिस्टम होगा, ये बोल हुई। इसके थ्रू मैं इसको टेम्परेचर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको Q हीट देना। तो Q हीट नहीं दूंगा, Q इजकल्स टू 0 होगा। तो ये एक एडियाबेटिक जिसमें वर्क इसमें मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्क कर पाएंगे। और वर्क करने के बाद इसमें जो होगा, जो इसका टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे, वर्क मैंने किया, टेम्परेचर चेंज किया, इंटरनल एनर्जी चेंज की। ये कैसा सिस्टम है, आपने घर में देखा होगा जब मक्खन बनाते हैं तो वहां पे एक ब्लेंडर का यूज करते हैं, ब्लेंड करते हैं उसको। ब्लेंडर क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, टेम्परेचर हम उसको दे नहीं रहे हैं, लेकिन वर्क हम करा रहे हैं। वर्क कराने से उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, एंड दे आर गेटिंग और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मैटर इज इंक्रीज्ड एज टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर भी उनका इंक्रीज हो जाएगा जब उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर वर्क कैन बी डन इन 2 वेज, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहला तो इसमें होता है
मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन ऑफ 1 किलो जूल। अगर हम 1 किलो जूल का एक सपोज हमने मान लिया एक मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं उसको घुमाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या होगा कि जो बाद वाला टेम्परेचर हमें पता है ज़्यादा होना है क्योंकि हमने उसको वर्क कराया है, तो यानी कि बाद वाली एनर्जी भी ज़्यादा होनी है क्योंकि हमें पता है, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा यू इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, और ये जो होगा दिस इज टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ठीक है ना, ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेल्टा टी, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा टी, ठीक है। ये मैकेनिकल वर्क डन हमने किया। दूसरा, अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर करता हूं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ऑफ 1 किलो जूल, ये भी 1 किलो जूल का है सपोज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो इसमें क्या होगा कि इमर्ज कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड, उसके अंदर कंडक्टिंग रोड प्रोवाइड करा दी, वर्क नहीं मैंने किया, इलेक्ट्रिक वर्क किया और उसका हीट नहीं मैंने बढ़ाया, केवल कंडक्टिंग रोड दिया, उसको करंट प्रोवाइड करा दिया। जब करंट प्रोवाइड कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट प्रोवाइड कराया, या फिर से यही कहानी आ रही है, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी ए एंड डेल्टा यू इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट केस था ये वाला और ये वाला, दोनों का डेल्टा यू सेम आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, द वे द पाथ बाय विच इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, कैसे ये बढ़ाया गया घटाया गया उस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि ये वर्क हुआ, इतना वर्क हुआ तो इतनी एनर्जी बढ़ेगी, पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट आप किसी भी समय यू को काउंट नहीं कर सकते, कभी भी इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पे, लेकिन हम उसका चेन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक पाथ बन जाए, स्टेट बन जाएगी कि स्टेट ए और बी है, तो ए से बी में जाने में कितना एनर्जी चेंज हुआ, ए में कितना था, बी में कितना था, वो हमारा पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय वर्क डन से हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क डन है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क डन दोनों ही कैसे हुए, अगर सेम है तो एनर्जी चेंज भी सेम होगा। ये सबसे पहले किसने देखा, जो साइंटिस्ट थे जूल, जिनके नाम पे यूनिट है वर्क का, ठीक है, एनर्जी का, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया दैट दिस इज अ स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन, ठीक है, ये हमारा पाथ फंक्शन नहीं है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं जो अभी तक नहीं किया है। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ सिस्टम, सिस्टम को डिफाइन करते हैं अभी, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और वी कैन से द कंटेनर ऑन विच वी आर वर्किंग, और ऑन विच वी आर स्टडिंग, टू विच वी आर स्टडिंग, और द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी हैव सेलेक्टेड फॉर द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, दैट इज अ सिस्टम, ठीक है। एंड द एंटायर यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के एक्सचेंज से ही, सराउंडिंग में स्लाइटली एक्सचेंज करके हम सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे जो स्टेट डिफाइन करने वाले फंक्शन होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको उससे पहले कि सिस्टम अगर हम डिफाइन करें, तो अगर हमारे पास सिस्टम है जिसके थ्रू हम मैटर भी चेंज कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, चेंज अपना हीट भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। द सिस्टम थ्रू विच ओनली हीट इज एक्सचेंज बट नॉट मैटर, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एंड द सिस्टम थ्रू विच नीदर द मैटर नॉर द हीट कैन बी एक्सचेंज इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इट हैज आइसोलेटेड वॉल, ठीक है, इट विल हैव आइसोलेटेड वॉल। चलिए नेक्स्ट वन है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड बाय सम प्रॉपर्टी, दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पर फिक्स स्टेट होगा, उनको चेंज कर देगा तो नया स्टेट मिलेगा, फिर से चेंज करेंगे तो एक नया स्टेट मिलेगा, ठीक है। जनरली 3 प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली अंडरस्टूड हो जाए, जैसे मैंने आपको डेंसिटी का एग्जांपल दिया। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम, बट दीज आर द प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर द मेन प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी डिफाइंड, वो हमारी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल सम, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी, कंस्टेंट पार्टिकल को स्टैटिक एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, आपका वाइब्रेशन एनर्जी, एवरी एनर्जी, द टोटल द सम ऑफ द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी विल डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो स्टेट। वो स्टेट फंक्शन कैसे है, क्योंकि वो केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो हमें यहाँ से पता लग गया, अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट करा। तो इंटरनल एनर्जी क्या करता है, केवल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हीट पास करते हैं और हम निकाल लेते हैं। ठीक है। किस तरीके से हमने हीट पास किया या हमने उसमें से कैसे निकाला, उस पर डिपेंड नहीं करता। केवल स्टेट क्या बनेगी उस पर डिपेंड करेगा। मैटर हमने एक्सचेंज कर लिया, उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी, हम पढ़ेंगे। पहला फंक्शन था इंटरनल एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट कैन बी चेंज थ्रू वर्क, हीट एंड हीट दोनों तरीके से। तो वर्क के थ्रू दो टाइप से वर्क हम कर सकते हैं। चेंज कैन बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय वर्क डन। अगर स्टेट फर्स्ट है तो UATA, सेकंड है तो UBTB। क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक वॉल, वर्क इज डन बट हीट एक्सचेंज इज जीरो, सो एडियाबैटिक। टेम्परेचर इंक्रीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे आप, यहाँ टेम्परेचर जरूर इंक्रीज होगा या चेंज होगा, टेम्परेचर अल्टर होगा, अल्टर लिख लेना इसको। ठीक है। दो तरीके से वर्क किया। सपोज वी हैव डन मैकेनिकल वर्क करेंगे तो भी टेम्परेचर चेंज होगा, so that energy will be also be changed. If we done electrical work done, the temperature will also be change, will change and internal energy will also be changed. If we done same extent of work or same magnitude of work, suppose 1 kilojoule, then the energy change in the both process when we done mechanical work and also in the electrical work, we get the energy exchange same energy exchange means फिर से पता लगा कि एनर्जी चेंज जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच वी आर चेंजिंग इट, जिसको हम चेंज कर रहे हैं किस पाथ से करें, इलेक्ट्रिकल से करें कि मैकेनिकल से करें। ठीक है। तो यही चलिए, बाकी आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।